to the YouTube channel of Life and More, uh, where stories of passion, perseverance, and transformation come alive. Today we have with us Radhika Sood Nayak, a Sufi singer whose journey is as soulful as her music. Born in Lucknow and schooled in Ludhiana, Radhika moved to Delhi to study economics at SRCC Delhi University. And she even did her MBA from XLRI Jamshedpur and then started her career in the corporate world. But soon her heart led her down a very different path. She entered the mystical world of Sufi music. Join us today as we explore how Radhika transformed her life, embraced her calling, and brings timeless melodies to life. Welcome, Radhika. Thank you, Raj. Thank you for having me here. बहुत खुशी Yeah, हो रही it's my pleasure. I've been like wanting to have you since a long time. I heard you first a couple of years back. Yes. I think 2020 or 2021. Since then, you were in my mind. Thank you. So thank you so much for being here. Thank you for having me here. So बहुत खुशी. yeah. So tell us, how did a corporate woman left that high cushy jobs and then entered into an uncertain world of being a singer? Actually, you give me a good cue, Raj, because Mm, uncertainty was had started there, and that okay. uncertainty made me realize that everything is uncertain. It is just it's just a feeling that okay, having a steady job with a steady income is going to last forever. Mm, पर वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे समझ में आने लगा कि नथिंग इज़ परमानेंट. Yeah, okay. so after doing my MBA, I got a very good job and I was very thrilled about it. Then I shifted jobs Mm, and came to Bombay. उसके mm, बाद मैंने जिस बैंक में काम किया वहाँ पे some merger and acquisition, those things were happening, and that mm, really made me see my position very clearly. And for a few months I was, there was some tentativeness around the job and the role. तो उससे मुझे mm, रियलाइज हुआ कि जिसको मैं इतना परमानेंट समझती हूँ वो शायद इतना परमानेंट है नहीं, एंड जिसे हम इतना correct. कॉशन से देख रहे हैं एज अ वेरी अननोन करियर, वो so that kind of pushed me towards making that decision of Okay. embracing music. So, Yeah, हाँ. So जिसको impermanent देख रहे हैं वो शायद ज्यादा permanent है for the whole of life. absolutely, you said it, yeah. हम्म. हम्म. तो पर सूफी ही क्यों? अच्छा, उससे पहले मुझे बताइए, आपका क्या मतलब ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड इयर्स, स्कूल इयर्स, कॉलेज इयर्स, वर यू ट्रेन्ड इन लाइक म्यूजिक? डिड यू हैव अ ट्रेनिंग इन म्यूजिक? या एज अ चाइल्ड आई ग्रो अप इन लुधियाना, जैसा कि आपने जिक्र किया. हम्म. और लुधियाना में हम्म. आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक. आई लर्न फ्रॉम अ वेरी सीनियर म्यूजिशियन. Of course, I didn't realize ओके. the value then, but only now when I look हम्म. back, I realize how cherished that was and how precious that ओके. was. Jaiswal auntie, Shrimati Usha Jaiswal, she was the head of the हम्म. music department in Government College for Women. उनसे सीखा ओके. मैंने. फिर उनके हस्बैंड हम्म. जो कि जलंधर दूरदर्शन से, सॉरी नॉट दूरदर्शन, ही वाज अटैच्ड टू आकाशवाणी इन जलंधर. वो आया करते ओके. थे वीकेंड्स पे जब लुधियाना, तो कभी कभी वो भी अपनी कोई बंदिश सिखाते थे. तो हम्म. दीज आर वेरी सीनियर म्यूजिशियंस. ही वाज द डिसाइपल ऑफ पंडित विनायक राव पटवर्धन. ये सारी ओके. चीजें, ये अब मैं उनकी अहमियत समझ पा रही हूँ. आई समझ वॉज टू पाए. यंग एंड टू हम्म. लाइक सो हम्म. इमेच्योर, बट दिस नहीं. हैपेंड. हाँ, but how did you like go into? Were it your parents who put you into music, और आपका अपना खुद का डिसीजन था कि मुझे ये सीखना है? नहीं, ये मेरे फादर का मतलब इनिशिएटिव था. ऑफ कोर्स आई Okay. हैड टू cooperate with that. I mean, I was a very shy kind of a person, and हम्म. म्यूजिक सीखने का मतलब है परफॉर्म करना. मतलब ये मेरे माइंड में तो हम्म. यही एक इक्वेशन थी, हम्म. राइट? सो हम्म. परफॉर्मिंग वाज वेरी वेरी caused a lot of anxiety.
राइट। Okay. और तब उस टाइम पे तो सुर और ताल की भी समझ बहुत ही कच्ची होती है, और यू आर मेकिंग पीस विद ऑल दैट, मेकिंग फ्रेंड्स विद ऑल दैट, सो इट्स अ Mhm. लॉन्ग जर्नी। Mhm. एंड बट माई फादर वॉज वेरी वेरी, ही फाउंड आउट हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो हमारे घर के नज़दीक रहती थी, मेरे को लेके गए उनके अच्छा। पास। तो फिर ऐसे करके, मतलब ही केप्ट इट अलाइव। He was हम्म। not a musician, he was an income tax lawyer, but in his हम्म। mind he made it happen for me in that sense. Yeah. Maybe he wanted you to get out of your shyness. He thought this was the way to do it. हाँ, उस ज़माने में क्या होता था कि अगर बच्चे में कुछ हम्म। कुछ टैलेंट है, तो उसको पेरेंट्स कैसे उसको होन कर सकते हैं, वो उनकी एक जर्नी रहती थी। हम्म। एंड ही रियलाइज्ड हम्म। दैट उनके या मेरी मदर के अंदर वैसा कुछ नहीं था जिसके जिसके थ्रू वो मुझे ही कुड हैव, आई कुड हैव गॉट इनपुट्स फ्रॉम देम। सो ही वाज अ मास्टर एट हम्म। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर दैट। दैट वाज Okay. हिज स्किल, Okay. एंड आई सैल्यूट हिम फॉर Hmm. दैट। Hmm. So why did you pick up Sufi music? सो व्हेन आई क्विट माय जॉब, तब मैंने Hmm. सीखना शुरू किया वापस। एंड तब एक Hmm. अंदर से, जैसे बॉम्बे में क्योंकि थी, तो मुझे लगा कि मैं प्लेबैक के लिए क्यों नहीं, दैट वाज द मोस्ट ऑब्वियस काइंड ऑफ अ रूट टू टेक, Hmm. राइट। Hmm. तो वो भी मैंने कोशिश की। आई मेड सम Hmm. डेमोज, आई वेंट टू सम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, आई वेंट टू सम एड फिल्म Hmm. मेकर्स, बट नथिंग क्लिक्ड। Hmm. बट पैरेलली सीखना Okay. शुरू कर दिया था। तो जब सीख रही थी, Okay. तो जो मेरी गुरु थी डॉक्टर सुशीला रानी पटेल, वो मुझे Hmm. वो मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम देती थी। वो जयपुर अतरौली Hmm. घराने से थी। तो Hmm. उस तालीम के दौरान ये भी एक रियलाइजेशन हुई कि एज अ परफॉर्मर आई डिडंट फील द तैयारी टू बी ऑन स्टेज एज अ क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मर। ये भी एक Okay. realization. And I think I also met her at a live stage when she was also past in her 80s. I was a Hmm. young Oh. mother by then. Okay. So for Hmm. me, so she had a huge repertoire. उनके पास सेमी क्लासिकल, भजन्स, इस सब का बहुत, अभंग, Hmm. इनका रेपर्टवार था। तो वो मेरी काबिलियत Hmm. के हिसाब से मुझे क्लासिकल की तालीम भी देती थी, और डिवोशनल सॉन्ग्स, और थोड़े Okay. उन्होंने फिल्मों में गाने गाए थे उनके, इन हर यूथ, Hmm. वैसे टाइप के। फिर Hmm. आकाशवाणी में मैंने ऑडिशन किया फॉर डिवोशनल म्यूजिक। Hmm. तो Hmm. डिवोशनल म्यूजिक बिकेम माय परफॉर्मेंस स्पेस, बट लर्निंग Okay. स्पेस वाज क्लासिकल Okay. लार्जली। Okay. तो फिर Hmm. डिवोशनल से फिर ये सूफी की तरफ एक और एक जर्नी, आई मेड अनदर जर्नी। Hmm. Hmm. Sort of natural progression. Maybe इत्तेफाक ही making कहूंगी। या devotional more well accepted in the society. There were Sufi lovers. वेल, एक्चुअली एट दैट पॉइंट, दिस वाज इन 2010, मैंने पहली बार जो अपना Mhm. फर्स्ट सोलो रिसाइटल दिया, यहाँ एक श्रीनाथ जी की हवेली है जुहू में, एंड आई सैंग Mhm. ऑल कृष्णा भजन्स। मैंने पूरा वो क्यूरेट करके, Okay. सुशीला जी ने मुझे बहुत मदद की उसमें। एंड बट एक Mhm. मैंने सूफी कलाम अबिदा परवीन का उसमें कोशिश की। Mhm. वो राग भूप पे Okay. आधारित था, और वो उसमें कपलेट्स थी। वो किसी एक शायर Mhm. की कलाम नहीं था, उसमें बाबा बुल्ले शाह की कपलेट्स थी, उनकी Mhm. सुल्तान बाहू की कपलेट्स थी। तब मैं इन पोइट्स को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर मुझे ये कलाम Okay. बहुत अपील किया, और मुझे लगा कि मैं ये गा Okay. सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने बस एक Mm. कोशिश की। उसके बाद वो मेरी, Mm. मुझे लगता है दैट यूनिवर्स ओपन फॉर मी। ओके। ओके। जब आपने लाइक म्यूजिक छोड़ा लुधियाना में और उसके बाद दोबारा पकड़ा उसे, कितना साल का गैप था? राज, एक्चुअली वो गैप था भी और नहीं भी था, क्योंकि हम दिल्ली शिफ्ट हुए हम्म। लुधियाना के बाद। हम्म। वहाँ मैंने गांधर्व महाविद्यालय में सीखना शुरू किया। तो अच्छा। वहाँ पे जो विनय चंद्र मौदगल जी थे, उनकी वाइफ थी, हाँ। भाभी जी थी, उनसे सीखा। वो ग्रुप हम्म। क्लासेस थी। हम्म। फिर विनय जी के भाई जी, उनको हम कहते थे, उनके एक छोटे भाई थे विनोद कुमार जी, वो भी वहीं अच्छा। गांधीनगर में सिखाते थे। तो उनके उनकी हम्म। उनकी जो क्लासेस थी, वो थोड़ा छोटा ग्रुप होता था। तो उन्होंने मुझे बहुत हम्म। इंडिविजुअल अटेंशन दी। आई वाज इन ओके। माय +2, मैं हम लोग 10वीं के हम्म। बाद वी मूव टू दिल्ली, एंड ओके। आई वाज गोइंग टू माय स्कूल डीपीएस में मैं जाती थी, और हफ्ते में 2 बार क्लासेस के लिए गांधर जाती थी। तो वहाँ पे हम्म। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया मेरी लर्निंग में।
ओके। और एक ओके। वो भी दिशा मिली। फिर मैंने जब 3 साल अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इकोनॉमिक्स की, तब हम्म। वहाँ पे कॉलेज बैंड था, तो उसमें गाना शुरू किया। पर वहाँ इंग्लिश हम्म। सॉन्ग्स का एक वो फतूर भी था, एंड इट वाज़ एन हम्म। इंग्लिश सॉन्ग बैंड, तो वो भी हम्म। थोड़ा आज़माया। और उसके बाद मैं जब एमबीए करने एक्सेलआरआई गई, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की, बट दैट डिडंट सस्टेन। हम्म। बट वहाँ पे हमारा वही जो थोड़ा-सा more casual singing. I wouldn't say like a ओके। dedicated music. Yeah. So हम्म। that it पर आपने continued, but कभी in a very छोड़ा नहीं, इसका मतलब नहीं, आपने म्यूजिक को कभी छोड़ा नहीं। नहीं, not in the sense, but पूरी तरह अपनाया भी नहीं. हम्म। So it was हाँ। there. Yeah, it was there, हाँ। but हाँ। kind of in the periphery. हाँ। Yeah. बट द पैशन में भी दैट डिडंट, जिसने आपको छोड़ने नहीं दिया उसको। हाँ, हाँ, समथिंग दैट इज़ व्हाट दीज़ आर, आई थिंक दीज़ आर नॉट माय ओन डूइंग्स। ये मुझे लगता है कि हम्म। सम ग्रेस इज़ with you, that this continues to be with you, and it emerges when the हम्म। time is right. It दैट्स allows ट्रू। you to do what you दैट्स want to do, because आपको लगता है कि ट्रू। आपकी वो जर्नी है। बट फिर जब मैंने हम्म। जैसे कि अपनी कॉर्पोरेट जो करियर था उसको में से जब मैं व्हेन आई ऑप्टेड आउट, it was हम्म। there, it presented itself, and then of course it हम्म। is your own, आप उसको कितनी शिद्दत से परस्यू करते हो वो तो है ही। नहीं वो आ, तो है, बट आपके पास एक रास्ता है, मतलब वो मे बी द यूनिवर्स वाज टेकिंग यू टुवर्ड्स दैट पाथ yeah, which was your calling. yeah, Corporate was not your calling. yeah, 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 of course, yeah. So आपकी लाइफ में biggest musical influences while growing up कौन से थे that shaped your you as a singer? राज, आई थिंक हम लोग बॉलीवुड से काफ़ी प्रभावित थे। वी यूज्ड टू वॉच अ लॉट हम्म। ऑफ फिल्म्स, और हमारे घर में मोस्टली फिल्म सॉन्ग्स चलते थे, एंड ऑफ कोर्स हम्म। भजन्स। इट वाज हम्म। नॉट क्लासिकल। तो हम्म। मैंने जो ग्रोइंग अप, माय इन्फ्लुएंसेस वर द वॉइसेस दैट रियली struck me. Usha Uthup's voice, Oh. Nazia Hassan. Nazia Hassan हम्म। was the voice when we were growing up. फिर ये हम्म। बहुत ही अल्टरनेट वॉइसेस, जैसे एक जगजीत कौर जी की आवाज है इन सम सॉन्ग्स ऑफ खयाम साहब, हाँ। हाँ। दोज वॉइसेस, आशा भोसले's वॉइस, लता जी, हम्म। लता जी सॉन्ग्स वर लाइक गॉस्पेल, पर हमेशा लगता हम्म। था कि उसके साथ गाने में उनकी पिच जो थी वो मेरे वो शी sang एट अ सर्टेन पिच व्हिच वाज नॉट माइन, हम्म। सो वो बिल्कुल फॉल्सेटो हम्म। में गाना पड़ता था, व्हिच वाज सो सम ऑफ दीज वॉइसेस व्हिच वन कुड सिंग अलोंग विद, हम्म। वो I would gravitate more towards that, because they allowed you to sing with them. And of course the अच्छा। Punjabi, sorry, हम्म। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, ऑल्सो जो फिर दूसरे जो इन्फ्लुएंसेस आए, जैसे गुरदास मान साहब हैं, या फिर सुरिंदर कौर जी हम्म। के हमने गाने, मुसर्रत नज़ीर के गाने हम्म। सुनते थे जो कि शादियों में गाए जाते थे, तो वैसा भी हम्म। एक, दैट वाज आल्सो अ पैरेलल ट्रैक। हम्म। हम्म। अच्छा, I'll go back to your taking up music wholeheartedly, full-fledgedly. What was the reaction of your family? Yeah, that is quite a well, the first reaction was not, the first reaction was that of caution. हम्म। Yeah, कि आपने इतनी डिग्री पाई है, यू गॉन टू अ बेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री, एंड आपको इतनी अच्छी हम्म। जॉब मिली है, तो और यू अर्निंग अ गुड सैलरी, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू हम्म। डू, फिर क्यों? हम्म। आई मीन यू कैन हम्म। कंटिन्यू अलोंग साइड। ये एक हम्म। एक थॉट प्रोसेस था, ये मेरा थॉट प्रोसेस भी था। आई वुडंट से दिस इज, आई एम हम्म। नॉट एक्सटर्नलाइजिंग इट, पर कहीं ना कहीं देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न, आई थिंक, कि ये क्या करेगी हम्म। अब, why has this gotten हम्म। into her? This was this my my immediate family, my husband, my parents, mostly these हम्म। people were the ones who responded. बाकी तो सब अपनी अपनी हम्म। जिंदगियों में मसरूफ हैं। हाँ। It's हाँ, बाकियों को भी फर्क नहीं पड़ता। correct, correct. It's not a I guess decision that those impacts ones. anybody. हाँ। Yeah. Yeah. But yeah, these Yeah. people were concerned mostly, what will हम्म। I do without the salary that I'm earning? Am I ready for that? हम्म। Because हम्म। this will mean no money for a long हम्म। time. We don't even know what No. is the road map. मेरे पास तो कोई रोड मैप ही नहीं था, हम्म। है ना? हम्म। तो वो एक कंसर्न था। तो आपको नहीं लगा कभी, डिडंट यू फील एनी टाइम लाइक शेकी
whether the decision is correct or not. That stage of uncertainty in taking your decision, like you want to do it, but then you are scared. Yeah, actually, Raj, because what was happening at work, the work के Hmm. जो हालात थे ना, वो इतने मुझे इतने एडवर्स लगे कि मुझे लगा कि अच्छा, अब करना है ये. There's something अच्छा. in my gut which was deeply determined to. While I'm saying कि मेरी Hmm. family ने ऐसे respond किया, but it was a response which was mixed, you know. They said, "अच्छा try." Hmm. There was encouragement, but there was concern Hmm. also. There was no. Hmm. देखिए, at that age when I'm, let's say I quit my job when I was almost 29, nearing Hmm. 30. So at that stage, nobody can really impose anything upon you. It's really your Hmm. call. Hmm. But yeah, people will give you Hmm. nasihat, thoda sa, you know, they are your Hmm. well wishers, like Hmm. my husband and my Hmm. parents, Raj bhi. Hmm. So, but ऐसा कभी discouragement नहीं हुआ. फिर भी उसके साथ it was always कि तुम करो, पर ये उसके Hmm. side effects होंगे. Are you aware of Hmm. them? Right? And which I Hmm. was. So it was pretty much my Hmm. call, which it is mostly in life. You know, Hmm. इनमें से कि फलाने ने करने नहीं दिया या, but अपनी जब when you decide to do it, then it's really your call, whether you're happy Hmm. with the Hmm. consequences of it. Yeah. I True. in some ways it helped that I didn't think too far about the consequences. In my head Hmm. I was कि चलो अगर 2-3 साल में नहीं हुआ तो नौकरी कर लूंगी, फिर से कर लूंगी. I अच्छा. may not be at the same Okay. level of seniority, but I'll Hmm. never be go hungry. I'll never be Hmm. dependent, right? That Hmm. much Hmm. confidence I had in my degree, I think. Hmm. Hmm. So somewhere at So the what back of the happened? mind, yeah. So what happened after that? Like you picked up music again. What was the journey from there? What were the challenges that you faced? Uh, Yeah. and which was your first performance after that? So after when I decided to quit, I met some people whom I knew in that Hmm. sphere, and बड़े इत्तेफाक Hmm. हुए मेरे साथ. For instance, Hmm. मैं जिन गुरु से मैंने सीखना शुरू किया, I did not know her Hmm. at all. But as I was Hmm. quitting, I was sitting in the High Court library with the lawyer of the bank that I worked in, right? And I was just Okay. sharing with her कि मैं अब quit कर दिया है मैंने, and आपके साथ कोई और interact करेगा. That is all I told her. अच्छा. हाँ, so she Okay. said क्या करने वाली हो तुम? तो तब पहली बार Hmm. इतना पर्सनल हमने बात की. तो मैंने कहा नहीं, I'm planning Hmm. to pursue music. She said, you Hmm. know what you're going to do? I said मैं देखूंगी. I'll Hmm. figure out. She said Hmm. my brother is a tabla artist, and why don't you get in Okay. touch with him and he'll help you Hmm. find. Like, I said I'm looking for some teacher. वो कौन थे? Hmm. उनके ब्रदर थे डॉक्टर अनीश प्रधान. Okay. हाँ, हाँ. तो now I called up Anish ji. Anish ji Hmm. led me to Ramakrishna Das Babu. Das Babu is a Hmm. scholar and a musician. Hmm. उनसे सीखा, फिर उन्होंने मुझे सुशीला रानी पटेल से मिलाया. तो ना बहुत Hmm. सारे ऐसे meandering paths थे. Hmm. But I think आपका chain बनता गया. Yeah, yeah, Maybe God wanted you to go that path, so the conditions were created. That is what I feel. yeah, The conditions are absolutely, created absolutely. such कि आप वहां से हटिए और अपने रास्ते चलिए. बिल्कुल, बिल्कुल. रास्ता बनता है, वो जो कारवां बनता गया ना, वो ही हुआ, लिटरली. हम्म. 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 तो आपका पहला परफॉर्मेंस कब था फिर उसके बाद? तो जब सुशीला जी से सीखना शुरू किया, तो शी हैड अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिव संगीतांजलि. तो वो उसके ओके. अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर वो आर्टिस्ट को प्रेजेंट करती थी. उनका एक एनुअल इवेंट होता था, साल में 2-3 इवेंट्स होते थे. तो एज हर डिसाइपल मुझे भी मौका मिलने लग गया उनमें. कभी भजन गाया, कभी एक छोटा सा बंदिश गाई, 5-7 मिनट की परफॉर्मेंस, उनके साथ बैठना, इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म करना. तो ऐसे कुछ मौके उनके मंच पे मिले. फिर उनके नेटवर्क के ओके. थ्रू कुछ मौके मिलने शुरू हुए. अच्छा. तो ऐसे करते करते, बट फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो सोलो मेरा परफॉर्मेंस था वो 2010 में था, इन अ टेम्पल इन जुहू, लाइक आई सेड, विच वाज अ कृष्णा टेम्पल, एंड वेयर आई डिड अ लाइक अ 2 hour set of Krishna bhajans, some filmy, some from the folk tradition, some which I learned from her, and that one Sufi kalam. Yeah, so that So was, from that was your beginning of your journey towards the Sufi music. yes, it was. Hmm. So what is it in Sufi that appeals to you so much? I think, Raj, two aspects are very appealing. Number one, the poetry.
that poetry somehow hits home for me. Like I remember that कलाम में वो एक कपलेट है, मैं मुझे वो अभी तक मेरी सबसे फेवरेट कपलेट है, जिसमें बाहू कहते हैं कि तस्बी बाती फेर ना बाहू, इस तस्बी दा की पढ़ना हूँ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ. You know, I mean, this kind of hit very hard for me. Just जैसे कबीर के दोहे हैं, you know, they in two lines so much wisdom is transferred. ऐसे अब कबीर also appeals to me in the same with the same force. But that couplet kind of just got me curious. फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं जब I started learning from दयाल जी, सुशीला जी के बाद, तो उनकी ऐसे उनके एक बुक शेल्फ में किताब पड़ी थी बुल्ले शाह के कलाम की, तो वो उठाया एक दिन, फिर देखा कि अरे इसमें तो कलाम लिखा हुआ है, फिर उसको परस्यू करना शुरू किया, फिर पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, फिर सुनते सुनते लिरिक्स भी समझ में आने लग गए क्योंकि सामने थे लिरिक्स, तो उससे फिर और रास्ते खुले. फिर मैंने म्यूजिकल बुल्ले शाह पे थोड़ा काम अपना, आई टर्न माई गेज ऑन टू बुल्ले शाह कलाम. तो आपका प्रोसेस शेयर विद मी द प्रोसेस ऑफ योर creating, like when you pick up a song and then you present, like its final presentation, what is the whole process that you go through, and how long is that process? Okay, actually I'll cut it down to two parts. One, when I started singing this kalam, it was clearly singing only covers. I would listen to a song 100 times and want to emulate it. So I wanted to emulate नुसरत फतेह अली खान साहब, आबिदा परवीन जी, और जो भी उस स्पेस में गाते हैं जिनके कलाम मुझे बहुत वो लगता था. मैंने उन साईं ज़हूर हैं, जावेद बशीर हैं, वडाली ब्रदर्स हैं, इनके कलाम सुन के पहला जो मेरा परफॉर्मेंस था ऑफ सूफी पोइट्री बाबा बुल्ले शाह पे 2015 में, वो पूरे कवर्स थे. अच्छा. हाँ, मैंने कुछ साल कवर्स ही गाए, पर धीरे धीरे फिर मेरी ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ जो कंपोज करते थे, और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज भी किया और बोला कि फिर एक दास्तान गो थे अंकित चड्डा, तो उनके आई रीच्ड आउट टू हिम. तब मैं बुल्ले शाह को काफ़ी गा चुकी थी एंड आई वांटेड टू मूव टू अनदर पोएट, सो आई रीच्ड आउट टू अंकित सेइंग कि लेट्स वर्क ऑन शाह हुसैन. तब उन्होंने मुझे बोला कि अब आप खुद कंपोज करिए, क्योंकि शाह हुसैन के इतना कलाम यहाँ नहीं गाया जाता, स्पेशली इन ईस्ट पंजाब. वेस्ट पंजाब में ज़्यादा उनका कलाम गाया जाता है. तो ही एनकरेज मी टू स्टार्ट कंपोजिंग. आई गॉट शाह हुसैन्स पोएट्री इन गुरमुखी. फिर मैंने पहली जो कॉम्पोजिशन की असा, वो मैंने अंकित की ही एनकरेजमेंट पे की. मुझे अफसोस है कि अंकित डिडंट लिव लॉन्ग इनफ टू पार्टनर विद मी टू कोलैबोरेट. ही हैड अ वेरी young, he passed away very young, so but he left, he has given me one of the biggest, most precious gifts of my life, the confidence to compose. तो फिर अब हम कवर्स करते हैं और कुछ कंपोज भी कर लेते हैं. अब वो उतनी यू नो अब इज एज द जर्नी इज प्रोग्रेस, अब लगता है कि अपने अंदाज से गाएंगे, इवन इफ यू आर सिंगिंग समबडीज कॉम्पोजिशन, अपने अंदाज से गाएंगे. अब वो प्रेशर नहीं फील होता कि आई शुड साउंड लाइक समबडी. कॉपी करने का वो नहीं रहता. एग्जैक्टली, है ना. आपका अपना स्टाइल लाइक इमर्जेस, आपका अपना स्टाइल आ जाता है, चाहे वो किसी का भी सॉन्ग हो, ना यू कंफर्टेबल. यस. तो आपके इतने करियर अभी तक के जितना भी करियर सिंगिंग का रहा है, उसमें आपके would you share an anecdote with us, like जो आपको सबसे ज्यादा अभी तक याद है, या सबसे ज्यादा which left a deep impact on you? अभी तक मेरे जो करियर का मतलब टर्निंग पॉइंट जिसको मैं कहूँगी, came in 2020, जिसके थ्रू मैं आपसे भी मिली. I was recalling to my family how about you, and in 2020 so असा जो मैंने गाना कंपोज किया, हमने उसको फिर रिकॉर्ड किया, and then I did a music video with the help of a friend. She is a professional filmmaker, and we were going to launch it in 2020 on बैसाखी. और फिर मार्च में आपको याद होगा कि कोविड आ गया,
और कोविड आने से वो सारे प्लान्स फिर सारा वी हैड टू रीथिंक एंड फाइनली हमने 1 मई को वो गाना रिलीज किया एंड आई टुक द हेल्प ऑफ अ पीआर एजेंसी टू हेल्प मी बिकॉज things had changed and in that process I got to know you and you also covered the song in your own writing and वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था राज बिकॉज उससे एक तो पहला गाना पहला म्यूजिक वीडियो एंड पूरा सारे प्लान्स पलट गए बिकॉज ऑफ कोविड फिर मैंने सिखाना शुरू किया पर मोर देन एनीथिंग एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म था कॉल्ड द संगत which used to happen from Lahore. Now they are a group of poetry lovers and they've been meeting since the 70s, since the decade of 70s in Lahore. तो ये संगत फिर क्योंकि कोविड आया तो वो लोगों ने भी इसको ऑनलाइन कर दिया तो 2020 में मैंने पहली बार उस संगत somebody introduced me again a chain of well-wishers who introduced me to that sangat and since then now 5 years have passed I'm part of that sangat and my understanding of classical poetry has been expanded like exponentially after I've become part of that sangat also बहुत सारी चीजें not just understanding is at a very cerebral level just the whole feeling the richness of my culture has kind of seeped into me only in the last few years that I continue to interact with them और मुझे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है उस ग्रुप में और आपको कुछ ऐसा भी समय आया कि जब आपको लगा कि यार ये नहीं हो रहा है मुझसे या बहुत ज्यादा कभी चैलेंजिंग सिचुएशंस रही म्यूजिक के जर्नी के दौरान जब आपको कभी लगा हो कि ये मैंने क्या किया एम आई एट द राइट प्लेस राज फॉर्चुनेटली वो थॉट नहीं आया कभी because I'm also exposed to the corporate side. My husband is attached to the corporate sector and I have so many friends who continue to work, so it is not that corporate sector I still have get a glimpse of it. So ऐसा thought तभी आता है कि अरे I left behind something which was so attractive or something. I don't find anything more attractive than what I'm doing. Let me put it that way. I don't want to demean anything else, but what I do is deeply gratifying to me. It may not be deeply financially rewarding at all times, but it is a beautiful gift that I have, and I never want to undermine it. तो आपने अभी तक कहाँ परफॉर्मेंसेस दिए हैं? Where all have you traveled to for your performance? Now, in the last few years, we've traveled to Bangalore, Delhi, बॉम्बे में तो किया ही है. बहुत सारी यात्राएं होती हैं. ये मालवा कबीर यात्रा है, तेलंगाना कबीर यात्रा है, अपनी मालवा राजस्थान कबीर यात्रा है. ऐसे करके हिंटरलैंड में जाके गाना ये बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस. ये मैंने इसको I've gone through this. Of course, we also do a lot of private बैठक्स now. People invite us for their very जो स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं उसके लिए हमें लोग बुलाते हैं. कबीर बानी के लिए, सूफी कलाम के लिए. उसके अलावा मैंने एक डांसर के साथ कोलैबोरेट किया है ऑन शाह हुसैन कलाम. तो दैट हैज टेकन अस टू डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री. या सो दीज आर द माय एक्सपेरिमेंट्स. तो आपने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह आप गए हैं या देयर आर एरियाज दैट आर लेफ्ट? नहीं बहुत एरियाज हैं लेफ्ट. हाँ बहुत एरियाज हैं. Where you want to go? Yeah, I would love to go to West Punjab and perform in the land of Baba Bulle Shah and Shah Hussain. That is my बहुत मेरी इच्छा है ये. उसके अलावा हम साउथ में जब हमें बुलाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब बाबा बुल्ले शाह ट्रैवल्स और शाह हुसैन ट्रैवल्स टू द साउथ and they receive it with so much openness and curiosity, it really is very gratifying. नॉर्थ ईस्ट में गए आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में गए हैं आप? नहीं गए हैं, वहां जाने की बहुत इच्छा है. या ओके आप डिफरेंट मतलब सिटीज में भी जाते हैं एंड यू सेड दैट यू गो टू हिंटरलैंड आल्सो, रूरल एरियाज में भी. तो व्हाट इज द रिस्पांस इन द सिटीज एज कंपेयर्ड टू द रूरल एरियाज? which ones are more welcoming
more accepting or more enjoying your music? Actually, Raj, I'm a bit wary of bringing that separation. Both are Okay. receptive, I would say that. Hmm. मैंने एक Hmm. रास्ता ढूंढा है कि ये लैंग्वेज काफी बार अजनबी है काफी लोगों के लिए, इवन द Hmm. पंजाबी स्पीकिंग वंस, इट्स not Hmm. something that they are familiar that much with. So I am, Hmm. so my path is a little different, that I like to talk about the piece that I'm going to sing, Hmm. and then I allow people to enter that with that little bit of understanding of the context, certain words Hmm. which will make them understand why the poet is saying what the poet is saying. That is Hmm. almost always worked. ओके, सो कहाँ का ऑडियंस आपको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगा है, पार्टिसिपेटिव लगा है? हाँ, देखिए, अब मतलब ऑडियंस मैं बताऊं कि क्या स्पेक्ट्रम है. आई गो टू हैदराबाद वेरी ऑफन, सो आई गो टू दिस हम्म, ऑटिज्म आश्रम ओवर देयर, और वहाँ पे मैं जो चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, ऑलमोस्ट ऑलवेज वी हम्म, सिंग, आई सिंग for them and their parents. It's a guardian's village, right? Their response is beautiful. Now they may be noisy, हम्म, but I know they're listening. So that is one हम्म, end, right? There is another spectrum. I went to Ludhiana recently, which is my hometown, और वहाँ पे भी हमने हम्म, परफॉर्म किया. ये कलाम सबने हम्म, सुना हुआ है जो हम गाते हैं, हम्म, लेकिन फिर हम्म, भी there was a beautiful reception to what they received, with a lot of openness what we sang, right? um, हम्म, I think one thing that I'm very careful about is कि पोएट्री को हम हमेशा सेंटर स्टेज पे रखते हैं. हम्म, हम उसको कभी भी क्राउड नहीं करते with too much instrumentation, too much हम्म, loudness. We always are हम्म, mindful that the poetry is reaching the listener or not. Of course music is the हम्म, mode, is the medium, हम्म, and म्यूजिक अपना हम्म, रोल है. तो my music, my हम्म, co-artists whom I collaborate with, they are also equally हम्म, mindful that it's not about showing their flair, I mean their एक्सपर्टीज, expertise. Huh, huh. The center stage, the hero of the act is the poetry. पोएट्री, Yeah. या या So I think सो that यू this sang is home. लाइक द वर्ड्स. Yeah. सो आपने भजन भी गाए हैं, आप सूफी गाती हैं, क्लासिकल भी करते हैं, प्लेबैक भी आई सपोज आपने किया होगा. अभी तक मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं कह नहीं सकती उसके अच्छा. बारे में कुछ. एक आध दो बार कुछ, जैसे आई वेंट एंड sang फॉर समथिंग व्हिच नेवर सॉ द हम्म. लाइट ऑफ डे, बट एड्स में ओके. एक आध दो बार गाने का मौका मिला. बट लार्जली फोकस इज लाइव परफॉर्मेंसेस, एंड ऑफ कोर्स आई रिकॉर्ड माई अच्छा. इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड पुट इट आउट ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई. हम्म. That's my biggest हम्म. expression. That gives me the freedom to sing what I wish to sing. हाँ. Yeah. So भगत तो सिंह की दिस घोड़ी भी गाते प्लेटफॉर्म. हैं. I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए. नहीं तो राज, दैट गिव्स मी द फ्रीडम टू सिंग, रेंजिंग फ्रॉम भगत सिंह की घोड़ी टू गुरबाणी हम्म. टू हम्म. फैज साहब पंजाबी कलाम टू सुरिंदर कौर जी हम्म. फोक सॉन्ग्स, पूरा गैमेट हम्म. है. हाँ हाँ. तो कोई ऐसा जनर है जो आप ने नहीं किया है और करना चाहते हैं? नहीं, जॉनर पर से तो आई फील वेरी फुलफिल्ड इन व्हाट आई एम डूइंग. I हम्म. would love to, of course, if our songs find a wider audience. That is always हम्म. an artist's क्या बोलेंगे, हम्म. aspiration. But हम्म. genre wise, हीर गाने की इच्छा है. हीर वारिस शाह में से हीर ओके. गाने की, like I would love to explore that more. अभी हमने हम्म. सस्सी पुन्नू और हीर रांझा पे एक स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरीज एंड अ सॉन्ग काइंड ऑफ पीस हमने तैयार किया है. तो उसमें हीर हम्म. गाने का मौका तो मिला है, लेकिन गेटिंग हम्म. डीपर इनटू दैट, हम्म. देयर आर सम अदर पोएट्स फ्रॉम पंजाब हु आई वुड लव टू सिंग मोर ऑफ. शिव कुमार ओके. बटालवी. I'd love to compose more of हम्म. Amrita Preetham and sing. ओके. Yeah, some ओके. more recent ones. रिसेंटली उस्ताद दामन है, संतराम हम्म. उदासी हैं, जिनकी बहुत रेवोल्यूशनरी पोएट्री है. मेरा हम्म. आई वुड लव टू या सिंग दोस टू. ओके. तो कभी
इतना सब काम करते हुए कुछ कुछ रह गया, जैसे ये तो आपने डिसाइडेड है कि ये आप करेंगे, बट बहुत वास्ट है म्यूजिक वर्ल्ड, और पोइट्री भी बहुत, देयर इज नो एंड टू इट, Yeah, है ना? yeah. तो आपको, क्योंकि आप पंजाब से हैं, लुधियाना से हैं, तो आपको वहां का ज्यादा अपील करता है, ऐसा कुछ है? Certainly. Yeah. अभी आप इतने टाइम से बॉम्बे में यू सेटल्ड इन बॉम्बे, तो वहां का मे बी महाराष्ट्र का कुछ, some poets from Maharashtra, or you go to Hyderabad, some poets from Andhra. No, that's a beautiful thought, Raj. I must confess कि मैंने उस पे काम नहीं किया है. मेरा एक्चुअली मैंने अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करना ही recent, मुझे ये recent like turn around है for me only. Last 15-20 Okay. years is when I have moved my gaze back onto my roots. So मुझे अभी वो time I don't feel fulfilled yet. तो जैसे पिछले साल हमने एक बॉम्बे में, क्योंकि मैं 30 साल से रह रही हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पे हम बैसाखी आती है, हमारे लिए बैसाखी के कोई मायने नहीं है, लोहड़ी के कोई मायने नहीं है, तो बैसाखी को लेके कुछ पोइट्री ढूंढी. फिर उसको एक धनीराम चात्रिक की बहुत खूबसूरत एक पोइट्री है जो कि मुझे तो खुद ही नहीं पता, तो मेरी खुद की डिस्कवरी जैसे जैसे होती है, तो मुझे लगता है अरे ये तो इतनी खूबसूरत है, तो लोगों तक भी हमें पहुंचानी चाहिए, तो उसको रिकॉर्ड करके डाला. तो हमने एक रल गावन का कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें कि लोग आएंगे, हम लोग साथ में गाने की कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ टीच देम बिकॉज दीज सॉन्ग्स आर वेरी सिंपल. इसमें ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फेमिलियरिटी विद द लिरिक्स. हाँ, धुनें बहुत सहज हैं. तो ऐसा कुछ बंबई में हम रह के बैसाखी को कैसे मना सकते हैं अपने खाने और गाने के साथ, लोहड़ी का भी वैसे ही है. तो अभी मुझे लगता है कि आई एम स्टिल इन द डिस्कवरी प्रोसेस फॉर दीज Of your own of my own. roots, Yeah. before you branch out to others. Yes. So, as an independent musician and independent singer, how tough it is to establish yourself. Here, I'm not talking about your own journey, but as a general thing, if you talk about कि एक पर्सन के लिए, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के लिए, इंडिपेंडेंट सिंगर के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करना कितना, बिकॉज लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग, हमारे यहाँ बॉलीवुड का एक मेन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मोस्ट ऑफ दिस, जैसे टीवी में भी जितने भी आते हैं, एवरीबडी वांट्स टू गो इनटू प्लेबैक फॉर द फिल्म्स एंड ऑल दैट. सो vis-a-vis that and an independent singer, how tough it is? मैं अनफॉर्चुनेट, मेरे को अपना ही तजुर्बा लेके बात करनी पड़ेगी कि इट इज अ लॉन्ग हॉल. नंबर 2, इट इज आई थिंक इट हेल्प्स दैट यू स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग. जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पहले काफी साल सिर्फ कबीर गाया, तो वो कबीर, then you kind of carve a little space for yourself, then you can experiment, but till then it helps to do one thing with depth. तो मीराबाई जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, एनीथिंग, आई एम नॉट डिफाइनिंग दैट. मैंने अपने लिए डिफाइन की पंजाबी सूफी कलाम. बहुत लोग कहते थे कि अच्छा आप हिंदी में कुछ गा सकते हैं, और गाते भी थे. आई डोंट हैव एनी वेरी रिजिड बाउंड्रीज, but in my head I wanted to build depth in this field, and I think that has paid off over the years, because then people start associating you with a certain form, which helps to get work. So you create a niche for yourself, and then you can, like, so that way an independent singer won't have maybe that many issues establishing self. That's what you want to say? ऐसा ये मेरी जर्नी से मैं कह रही हूँ. देखिए, if I compare my what should I say, listener base with a Bollywood performer, then I will forever be frustrated. So I don't even benchmark there. And I have now given my shift away from the MBA and from this world of numbers, ki how much, how many kind of a thing. I try not to obsess with that.
I try not to. Mm, Having said that, mm, I know that we need to earn, we need to be mm, self-sustaining. I would not mm, want to borrow for my this thing. I want to be self-sustaining, that, and financially mm, independent to the extent possible. mm, I'm not making this mm. just like a just a passion Hobby project kind of alone. thing. Yeah, Ah, there is there are other aspects to this. I have a team of mm, co-artists. I have mm, somebody who helps me with my work, my manager. So we are mm, an ecosystem. We need to be mm, self-sufficient, and that is also mm, on my mind. So we do work, but mm, largely we do mm, work which stays within our choice set. वी mm, स्टे ट्रू टू दैट एटलीस्ट जैसे mm, कुछ लिरिक्स हैं, कुछ किस्म के गाने हैं जो हमारे उसमें नहीं बैठते, हमारे पर्सोना में नहीं बैठते, हमारी ऑफरिंग में नहीं बैठते, तो हम बहुत mm, वेरी विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी वी एक्सक्यूज आवरसेल्व्स. mm. तो ये प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई है और भी बहुत सारे गाना है एंड देयर आर मेनी मोर लाइक दैट. इन सब ने इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को आगे लाने के लिए आपके हिसाब से दे हैव हेल्प्ड अ लॉट दीज प्लेटफॉर्म्स. पहले ऐसा सर्टनली. नहीं थे. हाँ, पहले ये सब ऑप्शंस नहीं थी. अब हमें किसी पे डिपेंड नहीं हाँ. करना है टू ब्रिंग आउट आवर म्यूजिक. हम्म, दैट्स वेरी लिबरेटिंग, हम्म, and I have हम्म, also capitalized on that. However, हम्म, मैं इन मीडियम्स को monetarily इतना नहीं exploit कर पाई हूँ. They have not been monetarily rewarding to me, but as an हम्म, artist, my work is out there. It really helps me. My हम्म, work is available for people to consume. हम्म, That is there. हम्म, But my work mostly getting more work has come through word of mouth. हम्म, हम्म. That has been my experience so far. तो आज व्हाट आर यू करंटली बिजी विद? कोई नया Uh, गाना, कोई नया प्रोजेक्ट? एक्चुअली दो गाने हैं जो हमने अभी प्रोड्यूस किए हैं. एक तो मेरे को आर्टिस्ट है नील मुखर्जी, उन्होंने उनकी कॉम्पोजिशन है जो कि मैंने गाई है, तो वो अभी हम वी आर ड्यू टू रिलीज इट सून. एक शाह हुसैन का कलाम था जो मेरे अंदर बहुत सालों से बैठा था, एंड नाउ finally we have produced it. Now I want to do a music video around it because it is about the woman, and it's a Shah Hussain is very irreverent in that. He says buriyan 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 ve assi buriyan ve loka. तो वो जो है ना, कॉल मी बैड बट आई डोंट केयर, वो जो इरेवरेंस जो शाह हुसैन के कलाम में है. सो वी प्रोड्यूस दैट. नाउ आई एम वेटिंग टू सॉर्ट ऑफ मेक द वीडियो एंड ब्रिंग इट आउट, बट दिस ईयर दैट इज ऑन द कार्ड्स. और भी कुछ गाने हैं जो अंदर हैं जो कि अभी उनको बना के रिलीज करना है. दैट इज या वर्क इन प्रोग्रेस. हाँ जी. Okay, you said that you want to be self-sufficient. Everyone wants to be. So I'm sure singing के अलावा आप कुछ ना कुछ मतलब you take classes or what is that gives you your self-sustenance? Yes, so teaching is one aspect. It in fact emerged during COVID because getting a concert was, that format was non-existent for many months. हाँ. So I started teaching. Teaching, but अभी क्या हो गया कि वापस performance has become taken center stage again. So between teaching and performance gets priority. Teaching, then fortunately I have students who are accommodating of my schedule, and Okay. there is flexibility on that. But yeah, one is that teaching reward is, it compensates you. Rewarding. Other is that teaching is a huge tool for learning, self learning. It's a And responsibility and it's yeah, self-learning both. yes, बहुत ज्यादा खुद की लर्निंग इतनी सीमेंट होती है. इट हेल्प्स यू एग्जामिन योर ओन म्यूजिक व्हेन यू आर टीचिंग समवन. तो आपके स्टूडेंट्स कौन सी एज ग्रुप के हैं? मतलब आर youngsters these days, they want to learn classical, they want to learn apart from Bollywood, they want to learn things, the actual music. माय स्टूडेंट्स कुछ एक थे यंगस्टर्स भी आए बिगिनिंग में, बट आई थिंक लार्जली पीपल हु आर इन द 30s 40s. एक है मेरी बहुत क्लोज, मतलब माय स्टूडेंट्स आंट, वो शी इज टचिंग 80, तो वो भी आती थी. बट सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. द थिंग अबाउट वन ऑन वन सेशंस इज दैट आई टेलर अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर सीकिंग. I don't impose. I have, of course, a certain area of expertise,
और जो भी मेरा कंफर्ट एरिया है उसमें से अगर जो भी Hmm. जिसको ठीक लगे, आई स्टे विद दैट. सो ईच स्टूडेंट हैज अ Hmm. डिफरेंट आस्किंग. एंड Hmm. कुछ लोग सिर्फ पंजाबी सीखने के लिए राजी हैं, कुछ लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, कुछ लोग फिल्म भी सीखना चाहते हैं, या जो भी सो आई डोंट Hmm. हैव सच वेरी रिजिड बाउंड्रीज. Hmm. Hmm. And a few very quick questions. Is there any musician or a singer or an artist that you want to collaborate with? Like वो होता है ना कि बस इनके साथ मुझे काम जरूर करना है, कभी ना कभी मैं जरूर करूंगी. ऐसा कोई नाम है? मैंने कुछ साल पहले रबी शेरगिल जी को रीच आउट किया था फॉर ऑफ कोर्स फॉर अ अच्छा. कोलैबोरेशन. बट ऑफ कोर्स ही वाज हाँ. वेरी स्वीट. ही सेड मैं काफी आई एम अ सोलो आर्टिस्ट माई सेल्फ, विच आई कंप्लीटली हम्म. अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट. हम्म. बट एज ऑफ नाउ ऐसे कोई नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा. बट आई वुड लव टू हम्म. कोलैबोरेट विद सम पीपल, सम सिंगर्स फ्रॉम वेस्ट पंजाब. एंड अच्छा. जैसे सलीमा ख्वाजा करके एक हैं, बहुत मैं उनका गाना बहुत एडमायर करती हूँ. एंड वो हर सखियाँ हम्म. करके उनका एक ग्रुप है लाहौर के नज़दीक, और वो लोग बहुत अच्छा गाती हैं. तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनके साथ गाऊँ या वहाँ की कुछ हम्म. आवाज़ों के साथ जुड़ूँ. ये तो मेरी हम्म. ख्वाहिश है. ओके. अच्छा, एक वन पीस ऑफ एडवाइस आप अपकमिंग सिंगर्स के लिए क्या क्या एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या कहना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? आई थिंक मेरे हिसाब से व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी इज टू बी एट इट. Okay. Yeah. And Preserve it. to, yeah, surround yourself with people who inspire you, and अपने से बेहतर लोगों के बीच में रहो. हम्म. Yeah, हम्म. look for people और like आप ओके एंड और एनी अदर हॉबी लाइक अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिक एंड सिंगिंग, व्हाट डू यू लव डूइंग? that's a interesting one. I've somehow not been able to develop any other hobby, but मेरी कुछ इच्छा है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखूं. मेरी ये बहुत ज़्यादा मुझे ये बात बहुत बार आती है मेरे मन में, पर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ. ये मेरी ही एक कमी है कि आई गेट सक्ड इनटू माय रूटीन वर्क, व्हिच आई कॉल माय दैट्स माय रोज का काम. एंड या, दैट्स वन थिंग व्हिच आई एस्पायर. Okay, so tell me your routine work. How is your day like? My day is, देखिए, I live in a family and I have children, so Mm. there is a reasonable balance of my domestic, my household, parental, family, and my Mm. professional, my artistic, creative side. I like Mm. to balance the two. I wouldn't. There are Mm. days when I'm completely cut off from my domestic, and I'm complete. I'm preparing to for something, and I stay very Mm. consumed with that. तो जैसे कि Mm. पढ़ना है, रियाज करना है, दूसरों को सुनना है, अम, सीखने जाना है, सिखाना है, इन सब में मेरा दिन गुजरता है. Mm. आप घर पे सिखाती हैं स्टूडेंट्स जी, को? मोस्टली ऑनलाइन होता है राज, बिकॉज़ आजकल लोग आना भी अच्छा. नहीं चाहते. दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम कम्यूटिंग आल्सो. Even the ones who Mm. learn from So, Bombay. so आपसे सीखना चाहे कोई, आपका स्टूडेंट बनना चाहे तो उसका क्या क्राइटेरिया है? कुछ क्राइटेरिया नहीं है, यू जस्ट हैव टू शो अप. Mm. मैं, जैसे आपने मुझसे वो अच्छा. पूछा ना कि एडवाइस क्या है, मेरा है कि शो अप, हाँ. जस्ट शो अप. Okay. Okay. And is there an age to begin? सॉरी, According, is there an age to begin learning music? मुझे नहीं लगता, देयर इज एनी एज. इट रियली Mm. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एस्पायर. कुछ लोग अगर बहुत Mm. एम्बिशन के साथ आ रहे हैं कि उनको किसी एक पोजीशन तक पहुंचना है, देन आई मे नॉट बी द बेस्ट, I may not play that role very well. But if you're coming for Mm. the love of it and with the Mm. genuine sense of wanting to improve from where you were, उसमें मैं Mm. जरूर आपका हाथ बटा सकती हूँ. It's gradual process. It's always self improvement. And where do you see like yourself 10 years down the line? I just hope that I'm healthy, that I'm singing, and I'm Mm. amidst music. I just hope for that. I Okay. don't know. I don't have any
कि मुझे माइलस्टोन नहीं है मेरे पास कोई. Hmm. So Okay. So, with that, we come to an end of this session. And thank you. thank you so much, Radhika. आपने इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए और इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए. एंड Thank आई you. एम श्योर जितने भी लोग आपको सुनेंगे वो जरूर म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे. Thank you. बाबा बुल्ले शाह की बहुत सारे फैंस हैं बाबा बुल्ले शाह के तो. बट आई एम श्योर जो बाकी पोइट्स हैं पंजाब के वो भी आपके सिंगिंग के थ्रू लोगों को मिलेंगे. आप उनको मिलवाएंगे. I hope so. एंड आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत wishes. And may you always excel in whatever you do. Thank you so much. Thank you very much, Raj. I'm really so grateful that you had me here. Really, it No, means a lot to it's me. my pleasure. I've been like I told you, I've been wanting to have you for long because I heard your songs and they impacted me. Otherwise, there are many singers. There are some touch you. So I was looking forward to meeting you.